Hello everyone. Today in this video, which is part of the series for writing answers in the main UPSC Civil Services exam, it is a very important topic that the words that are to be written in the main examination stage and also the time available with us. Has UPSC designed the main stage keeping in view the time given to the candidate, or it is a time test really? Are we having sufficient time to write all the answers for the questions given in a particular question paper? So we have to understand this so that we can have the weaknesses already identified before we are writing the actual exam paper in the exam hall, and also understanding the improvement areas that our writing is good. It is not a doctor's writing that we have written something and we are only able to read it, or sometimes we are not able to read it. Leave aside the evaluator and the other person who is to read the answer written by you and need to evaluate it. So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, बट पहले एक स्ट्रक्चर को हमें देखना होगा दैट कितने वर्ड्स हमें मेन स्टेज में लिखने होते हैं और कितना टाइम हमारे पास में अवेलेबल है. So if I need to tell about the stage in main examination, that the GS is having 4 papers that you know. Along with this, there is one essay paper and there is optional paper. In optional, you are having paper 1 and paper 2. In GS, paper 1, 2 and 3, because the structure is same, more or less 20 questions, approx 20 questions are asked, and in those 20 questions 10 questions are of 10 marker and generally having 150 words, and rest 10 questions are 15 markers and these are of 250 words each. So 150 words for single question into 10, you are reaching 1500 words here, plus 250 words for each question for 15 marker into 10, you are reaching 2500 words. So in total, this 1500 words and 2500 words, making a total of 4000 words into 3 hours, or you can say 180 minutes given to you. If we talk about these 3 papers in total, so what you have to do, that 4000 into 3 equal to 12,000 words around you have to write. Now at this stage, first the question mark in your mind, this is the brain structure anatomically speaking, is that do we need to fulfill the word limit given and prescribed by the UPSC, or if we are writing less words, say for example instead of 150 words we wrote only 140, or we wrote 160 or 175, the negative marking will be applied, or will it will not be having any implication? This is the first question. Then second question is that how to count the word. If you have written is, a mark, or trademark, are they counting each and every word written or not? This is also something to be answered. So first question is that either you have written 140 word, or if you have written 160 word,
instead of writing 150 exact word limit, which is not possible for any candidate to count and then write, because writing style is also sometimes different, not sometimes, every time it is different. कुछ लोग फैला कर लिखते हैं, कुछ लोग बहुत कंजेस्टेड फॉर्म में लिखते हैं, कुछ लोगों की राइटिंग थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। तो स्पेस वर्सेस वर्ड्स अपने आप में एक इक्वेशन बन जाती है हर कैंडिडेट के लिए डिफरेंट। लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है आज तक, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है इंक्लूडिंग मी, जितने लोग सेलेक्टेड हैं, जितने लोग इवेल्युएटर हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों से जो मेरे साथ में फ्रेंडशिप वाले इक्वेशन को रखते हैं, उनसे भी बात हुई है। और जब मैं खुद से टेस्ट सीरीज चॉइस करता हूं और उसमें मुझे मार्क्स देने होते हैं, तो मुझे यही समझ में आता है दिस इज अ साइकोलॉजिकल इक्वेशन। ऐसी कोई लिमिट आपको बिल्कुल टाइटली फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को जितने वर्ड दिए गए हैं उतना ही लिखना है। हालांकि आज की डेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आंसर शीट में ही प्रिंटेड होते हैं। यदि फ्लो अच्छा है और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आपने स्पेस क्रिएट कर दिया या स्पेस क्रिएट हो चुका है कि आपको उस चीज को बताना है और आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस भी हो चुकी है, ऐसा आपको भी लगता है, ऐसी कोई बाधा रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस प्रोसेस को लेकर जहां पे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट इनहेरेंट है कि आप अपने आप को रोकें, आप लिखें और आपको मार्क्स मेरे हिसाब से ज्यादा ही मिलेंगे। और यदि आपने वर्ड लिमिट को टाइटली फॉलो किया कि हमें चाहे इनकम्प्लीट पिक्चर बनानी पड़े आंसर के अंदर में, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वर्ड लिमिट क्रॉस हो रही है इसलिए एग्जाम्पल नहीं देंगे, तो फिर वहां पर मामला और जो मैटर है वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। जब आप कंप्लीट पिक्चर देते हैं आंसर्स के अंदर, एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन बन जाता है एग्जामिनर के दिमाग में आपके लिए, और वो धीरे धीरे करके अपने मन को खोल के आपको नंबर देने लगता है। जहां 5 देने की जरूरत है वहां 6 नंबर। तो इस एक एक नंबर से भी बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलता है लास्ट में। कमिंग बैक टू दी वर्ड लिमिट्स, नाउ 12,000 वर्ड्स यहां पर हो जाते हैं। जीएस पेपर 4 के अंदर जो एथिक्स का पेपर है, यहां पर बेसिकली जो 6 क्वेश्चंस लास्ट के होते हैं वो केस स्टडी के होते हैं, और शुरू के 6 क्वेश्चंस में भी ए, बी और इवन सी सबसेट क्वेश्चंस के मिल जाते हैं देखने के लिए। तो ये जो केस स्टडी की वजह से वर्ड लिमिट जीएस पेपर 4 के अंदर है, ये रिलेटिवली कम हो जाती है और ये टोटल मिलके लगभग 3450 के अराउंड बैठती है, जो कि हमें इस वाले एडिशन में ऐड करना पड़ेगा। तो जीएस के जो टोटल पेपर यहां पर बनते हैं वो 12,000 प्लस 3,450 वर्ड्स, ये टोटल हो जाता है आपका 15,450 वर्ड्स। नाउ इसके अंदर में हमें ऐसे के वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे। यदि आप ऐसे का पेपर देखें तो वहां पर 2 ऐसे आपको लिखने हैं, ऐसे 1 एंड ऐसे 2, और हर ऐसे की वर्ड लिमिट 1000 से लेके 1200 वर्ड तक है। मैं मैक्सिमम वर्ड्स को काउंट करता हूं और यहां पर ये वर्ड लिमिट आती है टोटल 2400 वर्ड्स की, जो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा। आई विल ऐड इट वंस आई नो द वर्ड लिमिट इन ऑप्शनल। In optional, we have 2 paper. In humanity, I am talking, not in the technical paper like mechanical के पेपर में वर्ड लिमिट क्या होगी, मैथमेटिक्स के पेपर में क्या लिमिट होगी, वहां पे वर्ड लिमिट नहीं होती है क्योंकि डेरिवेटिव्स होते हैं और हर एक लाइन में 4 या 5 वर्ड्स ही होते हैं। वर्ड्स भी नहीं कह के डिजिट्स हो सकते हैं या उनके अल्फाबेट्स होते हैं, मीन्स डेल्टा लिख दिया या गामा लिख दिया। तो ये सब चीजें वहां पर होने के बाद में इक्वेशन कुछ और ही बनती है इवैल्यूएटर के माइंड में। यहाँ पे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में आपको सेंटेंसेस लिखने होते हैं, तो इसीलिए वर्ड लिमिट का मैटर बनता है। तो जीएस पेपर सॉरी ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2 के अंदर में टोटल मिला के 7,800 वर्ड्स की लिमिट बैठती है। इसका मतलब ईच पेपर 3,900
900 वर्ड्स का होता है। जीएस पेपर 1 2 3 में 4000 था, ऑप्शनल में 3900 है। इसका मतलब जीएस पेपर 1 2 3 अभी तक के सबसे ज्यादा लेंथी पेपर बनते हैं आंसर्स लिखने के लिए, वर्ड्स को जो हमें उसमें लिमिट रखनी है उसके कॉन्टेस्ट में। नाउ इफ आई ऐड 7 8 0 0 here also, then where do I reach? These words I have to count. I will be counting it in front of you only. Six, eight. So it means you have to write approx 25,000 words. Now again to the question that these words can one candidate write? If any candidate has been asked that how many words you can write in a minute which is a readable writing, ऐसा ना हो कि वो आपने लिखने के बाद में आपने खुद से ही पढ़ना है तो आपको समझ में नहीं आ पा रही है। ओके, सो राइटिंग स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो यही कहते हैं कि 20 से 25 वर्ड्स, 20 to 25 वर्ड्स एक बहुत अच्छे राइटिंग में आप पर मिनट लिख सकते हैं, राइट। नाउ यदि 180 मिनट्स आपके पास हैं और आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं जीएस पेपर 1 2 और 3 में, और यदि आप इसका डिवीजन लगाएं तो आपको 22.22 करके आंसर आता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास पर मिनट 22 वर्ड से ज्यादा लिखने की नीड है। उसके अंदर पहले 5 मिनट आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने में चला जाता है कि रणनीति, स्ट्रेटजी जो है वो क्या बनेगी। देन नेचुरल कॉल लाइक वॉशरूम भी हो सकता है, जाना पड़ सकता है, लेकिन मैं यहाँ ये एडवाइस करूंगा कि आप एकदम अच्छे कंपोजर में बैठें, राइट, जिससे कि आपको उस 3 घंटे का पूरा जुडिशियस यूज बैठ के निकल जाए। ब्रेक आप पूरा पेपर होने के बाद ही लें, लेकिन पहले 5 मिनट जस्टिफाइड है। लास्ट के 5 to 10 मिनट्स आपको बहुत जरूरी हो जाता है अपनी उत्तर पुस्तिका, अपनी आंसर शीट को चेक करने के लिए, जिसमें क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। और उसी प्रोसेस में आपको उसी पेन से, कोई दूसरे पेन की जरूरत नहीं है। हालांकि यूपीएससी प्रिस्क्राइब करती है पेंसिल का यूज करने के लिए, जहां पे फ्लो चार्ट बनाना है या कोई ग्राफ बनाना है, पेंसिल भी यूज की जा सकती है या सेम पेन यूज किया जा सकता है टू हाईलाइट दोज वर्ड्स इन दी पैराग्राफिक आंसर्स जो आप चाहते हैं कि इवेल्युएटर उसको देखे, या आप खुद से चाहते हैं कि मैं इन पॉइंट्स के ऊपर या इन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देना चाहता हूं। तो ये पॉसिबल तभी होता है जब आपके पास 10-15 मिनट्स लास्ट में बच जाए। इसका मतलब ये है कि हर कैंडिडेट के पास ये नीड है कि वो कैसे भी करके 25 वर्ड्स से लेके 30 वर्ड पर मिनट लिखने की हैबिट बनाए और इतने आंसर्स लिखे कि उसको 10 या 15 मिनट लास्ट में मिल जाएं कि वो दोबारा से अपनी आंसर शीट को देख पाए। यहाँ पे एक चैलेंज ये भी आता है कि हर क्वेश्चन आपको नहीं आता और आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखना भी होता है। और लास्ट में एक हिंदी में कहावत है कि भागते हुए भूत की लंगोट भी हाथ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप 2 या 3 सेंटेंसेस भी लिख पाए अपने आंसर के अंदर में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर यदि आपसे खुश हो चुका है पहले के आंसर्स पढ़ के, तो वहां पर वो आपको 1 या 2 नंबर तो दे पाए। यदि आपने ब्लैंक ही छोड़ दिया उस आंसर को तो मजबूरन वो कुछ नहीं दे पाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि 10-15 मिनट्स आपके पास लास्ट में जरूर बचें, जिससे आप अपने आंसर को डेकोरेट कर पाए, अंडरलाइन कर पाए उन वर्ड्स को जिसके ऊपर आप स्ट्रेस देना चाहते हैं। नाउ इसका मतलब यदि मैं टोटल आवर्स की बात करूं, यहां पर जीएस के अंदर आपको टोटल 12 आवर्स देने पड़ते हैं, ऐसे के अंदर आपको 3 घंटे देने पड़ते हैं, ऑप्शनल के अंदर आपको टोटल 6 आवर्स देने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल 21 आवर्स
total 21 hours and around 25,000 words. इतना ही खेल है. उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के 2 क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 25% मिनिमम चाहिए होता है आपको, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. और 1750 नंबर आपको चाहिए 21 घंटे में. उसके बाद में 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है. यही एक छोटी सी कहानी है. लेस देन अ 1 डे टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मेन स्टेज एंड इसमें आधा घंटा इंटरव्यू का भी जोड़ लीजिए. पूरे लाइफ का एसेंस इन वाले आवर्स में आपको पोर इन करना पड़ेगा. और दैट इज व्हाई द वर्ड लिमिट, द टाइम अवेलेबल विद यू, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट आर टू बी अवॉइडेड एंड द मेन स्टेज टू बी एडहेयर टू स्ट्रिक्टली. आजकल जो आप मार्कशीट देखते हैं उसमें एक कॉलम सारे के सारे मार्क्स के बाद में बना हुआ है. वो कॉलम किस चीज का है? पेनल्टी का. पेनल्टी इफ एनी. हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में इवेल्युएटर को मार्क इंडिकेट करने होते हैं और कहीं ना कहीं उसे पेनल्टी जो यूपीएससी ने आपको वेबसाइट पे बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, कि आपने अपनी आंसर शीट के अंदर में कोई साइन बना दिया, मान लीजिए क्रिश्चियनिटी का साइन बना दिया, या फिर आपने ये साइन बना दिया, या फिर आपने ये साइन बना दिया, राइट, या फिर कुछ भी एनीथिंग आपने बना दिया, तो मार्क्स कट सकते हैं. जहां पे एग्जाम के नेम का नाम लिखा है वहां पे आपने अपना नाम लिख दिया, या आपने आंसर शीट्स में जहां आंसर लिखने हैं वहां पे रोल नंबर लिख दिया. इवन यूपीएससी ने ये तक बोला हुआ है कि कुछ कैंडिडेट ऐसा भी लिखाते नीचे एक इमोशनल अपील दे देते हैं दैट आई एम अ न्यूली मैरिड person, I needed a job, please give me sufficient marks. Or I am a newly married woman, there I am having some pressure to have success, please do the needful. आपके मार्क्स कटेंगे, राइट. किसी के 20 मार्क्स भी कटते हैं, किसी के 30 मार्क्स भी कटते हैं. यूपीएससी हैज come out categorically in the exam, in the notification only, that there may be a chance कि वो जो आंसर शीट आपने लिखी है वो इवेल्युएट ही ना हो. Maybe the writing that you have used is not readable. Maybe you have written some of the things in the margin of the answer sheet. ये margin basically जो होते हैं वहां पे आपने कुछ ना कुछ साइन अपने बनाए हुए हैं इस तरीके के कि वहां पर ये पता लग रहा है कि आप इवेल्युएटर को ये बताना चाहते हो कि ये मेरी ही कॉपी है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. नेगेटिव मार्किंग तो एक अलग चीज हो गई जहां पे आपके कुछ मार्क्स ही कटेंगे, आपकी कॉपी भी चेक नहीं होगी, पूरा का पूरा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम इंक्लूडिंग व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड लिमिट, ओके, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इट मीन्स दैट in the conclusive statement, if I need to say that 25,000 words you have to write in 21 hours, 21 hours and in 4 to 5 days time for 750 marks. And for this you need to have at least 25 word to 30 word per minute. WPM means word per minute speed. Now इसको हम लोग डेवलप कैसे करेंगे? How to inculcate the habit? There is HB pencil. One of the suggestion from my end, यदि आप लोग अगले साल का एग्जाम दे रहे हैं या अभी भी थोड़ा सा टाइम है, 16 सितंबर से पेपर इस बार शुरू है, तो अगस्त का महीना लगा है, अगस्त सितंबर, तो लगभग 45 days are available with you. Today is 2nd. Now if I need to tell you that HB pencil को आप इंग्लिश के 4 खाने वाली जो कॉपी बचपन में आती थी, इन चाइल्डहुड यू हैव यूज्ड, आप इसे यूज करें और जितना फैला फैला के लिख सकते हैं, सुंदर सुंदर लिख सकते हैं,
उतना लिखने की कोशिश करें। कैलीग्राफी भी होती है कुछ कैंडिडेट्स की राइटिंग, उनके थॉट प्रोसेस, उनका फ्लो, जो भी वो बात कहना चाहते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश हो, ये भी एक बात है, बट कितना रीडेबल है वो राइटिंग, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ बहुत छोटा छोटा वर्ड्स लिख के आते हैं जो समझ माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखना पड़ जाए। एग्जामिनर को परेशान नहीं करना है, इवेल्युएटर को खुश होना चाहिए कि चलो थॉट प्रोसेस के साथ साथ एक बहुत अच्छा रीडेबल डॉक्यूमेंट आंसर शीट मेरे पास आई है पढ़ने के लिए, राइट। दिस इज वन ऑफ द सजेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द पेन यू हैव टू चॉइस। काफी सारे पेन होते हैं, कुछ लोग पायलट पेन का बहुत अच्छा यूज कर लेते हैं, राइट, कुछ लोग बॉल पेन यूज करते हैं। मुझे याद आता है कि मैं रेनॉल्ड्स का पेन जो 6 रुपए का उस टाइम पे आता था, मैं एक ब्लू कलर का, एक ब्लैक कलर का और एक पेंसिल अपने पास रखता था। तो बेसिकली उसकी रिफिल खत्म हो जाती थी तो रिफिल भी कई सारी रख लेता था। शुरुआत में जो रिफिल होती है वो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है लिखने में। उसके बाद में 10-15-20 लाइन लिखने के बाद में उसकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो सारी की सारी जो रिफिल्स मेरे पास होती थी एक पेन की, मैं उनको यूज कर लेता था पहले ही, जिससे एग्जाम हॉल में या टेस्ट सीरीज भी लिखते वक्त उन सबको बस बदलना हो मुझे, या फिर 2 या 3 पेन एक साथ रख लो जिसमें यूज्ड रिफिल्स हों, राइट, 1 या 2 पेजेस उसमें से ऑलरेडी लिख चुके हों, जिससे कि उसकी स्पीड में कोई भी अंतर ना आए। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर शीट में यूपीएससी ने ये भी लिखा हुआ है कि आपको क्या नहीं करना है, कि आपने एक पेन से कोई आंसर लिखा हुआ है, सॉरी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरे पेन से आपने लिखा हुआ है। हो जाता है कि पेंसिल भी यूज होती है, ऐसा भी आपको नहीं करना है कि पेंसिल से लिख दिया फिर पेन से लिखा। तो ये एक इंडिकेशन बनता है कि आप किसी इवेल्युएटर को, पर्टिकुलर इवेल्युएटर को ये बताना चाहते हो कि ये मेरी ही कॉपी है। सो ऐसा बिल्कुल ना करें, और मेरे हिसाब से एक ही पेन यूज करें। यदि आपको अंडरलाइन भी करना है तो उसी पेन से ही अंडरलाइन करें, दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग न्यूट्रलिटी ऑन योर पार्ट। Okay, so this is what I just wanted to say, that this is the total essence that you are having. If you need to just calculate that इस 21 आवर में आपको ये वाले काम करने हैं और कितने पेजेस आपको लिखने हैं, अराउंड यदि आप समझें कि 150 वर्ड्स लिखने के लिए लगभग एक या थोड़ा सा उससे ज्यादा पेज की जरूरत होती है। आज की डेट में तो खैर आंसर शीट के अंदर ही क्वेश्चन प्रिंट होता है, मार्जिन पहले से ही बने हुए होते हैं, बट फिर भी यदि पेजेस की यदि मैं बात करूं तो कितने पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ऑल इन ऑल कितने पेजेस आप लिख रहे हैं उनका भी काउंट रखिए सीरीज के अंदर, जिससे कि एक टोटल साइंस डेवलप हो पाए वाइल राइटिंग द आंसर, कि अभी आई हैव रीच्ड दिस लेवल that yes, I can expect the marks. This is apart from whatever you are writing, what are the analytical things, content things, and flow chart or any statement and other things which I have discussed already in other video. This is just the technicality that every candidate must be aware of. So with these words, I am signing off today. See you in the next video very soon. Till then, Jai Hind. Please take care.